आपकी मैथमेटिक्स शुरू होती तुरंत ही आता है। नहीं अभी नहीं। आपको मोबाइल है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Akhil. Good afternoon. Good afternoon, beta. Okay, where were we? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. How is Sania's headache? Ma'am, my it was not headache, ma'am. Actually, my phone was not charged. Okay. Ma'am, there's only 2% battery left. Right now also? No, ma'am, now it's charged, ma'am. Then I charged my phone, but I forgot to switch on the switch, so that's why. Okay. This to even at times I also. Good afternoon. Good afternoon, beta. Let everyone come. Fine. We were on the I think on the last few topics we were there, right? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. क्या हो गया था फैज? Ma'am, I don't know, ma'am. In the morning, my Zoom got signed out and it was like hanging up, so I had to reinstall it. I think yesterday it was showing an update. Yes, ma'am. Ma'am, I didn't check. Yes, ma'am. हाँ, it was yesterday it was showing an update, तो हो सकता है कुछ अपडेट का भी हो. At times ऐसा भी होता होगा. अगर आपका ऐप अपडेटेड नहीं है तो दिक्कत होती होगी, right? Yes, ma'am. Dhananjay, if you're writing something, I'm not able to see what you're writing, beta. Squares are coming. Dhananjay?
I am sharing the screen with you all. I think we were reading on. Ma'am, automobile industry. Fine. Ma'am, we have to start information technology and electronics industry. Acha, we have to start from there. Give me a minute, just a minute. Huh? Ma'am, Deepshika has read, ma'am, we have to do, I think, explanation part. See, not much of explanation is required in this. What exactly you need to know is that if we talk about the automobile industry, sorry. See, if we talk about the automobile industry, most of the automobile industries, they are confined in the areas of Delhi, Gurgaon, Gurugram, Chennai, Kolkata, Pune, Indore, Hyderabad, Bengaluru. Right? Then if we talk about the various units that are there, like if we talk about the passenger cars and multi-utility vehicles, there are 15 units which are producing only passenger cars and the multi-utility vehicles. Now, what are these multi-utility vehicles? Can you tell? Any one of you? Can any one of you tell what are these multi-utility vehicles? Class? Yes, ma'am. क्या होते हैं फैज multi-utility vehicles? Ma'am, बताइए. Ma'am, like one vehicle can use many people. See, multi-utility vehicles, vehicles which have got several utilities. जैसे अगर हम बात करते हैं vanity vans के बारे में आपने सुना होगा. Yes, ma'am. What are vanity vans? ma'am, Yeah. ma'am, which contains like facilities. Which kind of facilities? Hello, ma'am. हाँ बेटा, बोलो अग्रिम. Ma'am, हाँ. ma'am, may I rejoin? Ma'am, कर लो, rejoin कर लो अग्रिम. Oh, ma'am, are the vehicles which contain all kind of facilities in it? I mean, what kind of facilities they are talking about? Ma'am, like washrooms we have in the vanity van. Okay. What else? And we can feel like Comfort, ma'am. Ma'am, like dressing moving room house. also. हाँ देख, जैसे वेनिटी वैन अगर हम बात करते हैं, वेनिटी वैन की जैसे अन्या ने बोला कि वेनिटी वैन्स होती है. वेनिटी वैन्स का क्या पर्पस होता है? टू हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ सेलिब्रिटी व्हेन ऑन टूर्स. ठीक है, अगर घर से बाहर वो जाते हैं तो उनके पास हर वो फैसिलिटी हो जो कि वो एक स्टूडियो में जो फैसिलिटीज उनको अवेलेबल होती है. ठीक है, तो ये जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, ये बेसिकली वो होते हैं जो कि हर तरीके का काम जो है वो करते हैं. ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes. yes. ठीक है, तो मल्टी यूटिलिटी मतलब एक तो हम उसको
भाई फॉर ट्रैवलिंग तो हम यूज करते ही करते हैं, बस उसके साथ और भी काम उसके साथ जो है हम जोड़ देते हैं उसके अंदर, तो उसको हम मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बोलते हैं। अब जैसे अगर हम ट्रक्स की बात करते हैं, अगर आप ट्रक्स को देखो तो आपने ये ऑब्जर्व करा होगा, जैसे आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मॉल के बाहर कुछ ट्रक्स खड़े रहते हैं जिनमें अजीब सी आवाज आती रहती है और ऐसा लगता है जैसे Yes, ma'am. कि एसी वगैरह ऑन है उसके अंदर। तो Yeah. कुछ हाँ, कुछ ये जो इस तरीके की जो कार्स व्हीकल्स होती हैं, ये जो इस तरीके की गाड़ी होती है, उनमें आप जो है बहुत सारी चीजों को जो है रख के जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्पेशली जो आपके जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इन पेरिशेबल गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने का सबसे इजी तरीका इन मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स में जो है अलग अलग तरीके के मोड्स को जो है इंस्टॉल करके, जिसमें कि ये इजीली जो है सेफ रहे और इन इन दैट दे डोंट गेट रॉटेड। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। हाँ जी, यस, धनंजय इज रेजिंग हैंड। यस धनंजय, व्हाट डू यू वांट टू से? Ma'am, we can take the example of Maharaja Express also. महाराजा एक्सप्रेस तो ट्रेन हो गई, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या है, स्पेशलिटी क्या है महाराजा एक्सप्रेस की, इफ यू कुड टेल? Yes, ma'am. Ma'am, there is facility of bed. देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ बेड, व्हाट एल्स? Dining room, ma'am. Proper dining. Yes, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ma'am. And proper living room. Ma'am, हाँ, AC room. बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने, ठीक है, चलिए, दैट्स गुड। अब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की, जो हमारे कंट्री में 9 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली कमर्शियल व्हीकल्स को ही जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की, तो देयर आर टोटल 14 यूनिट्स इन आवर कंट्री। वो सारे स्टेट्स या वो सारे प्लेसेस जहाँ पे ऑटोमोबाइल जो है मैन्युफैक्चर होते हैं, तो 14 यूनिट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, राइट क्लास? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Now, coming to the ये जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें जो है फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है, and because of this direct foreign investment that has been introduced, it has led to a multiple growth of this industry. आप देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और जो है आपके जॉइंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, कैन यू नेम सच? Ma'am, gems. बताओ। मैम what? वो कौन से जॉइंट सेक्टर यूनिट्स हैं जिनमें की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो काम Ma'am, करते हैं? हाँ माले, बताओ बेटा। मैम टाटा कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड। Ma'am, HL. वेरी गुड वेरी गुड, HAL भी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो यूनिट्स हैं ये जो है कोलैबोरेट करा है इन्होंने, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलके टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल, Bajaj. राइट? हाँ, बजाज इंडस्ट्रीज है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलिए। नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, IT सेक्टर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं बेटा? हाँ, anything that you know about the IT industry, electronic industry? हाँ, Yes, क्या? ma'am, they are the service provider. हाँ, what This kind is a of service sector. this is the service sector. What kind of services are provided? Ma'am, like calling and internet service tele- provide internet servicing and Okay, ma'am ATM booths, ठीक है, call what- centers. ठीक है, very good, very good. And ma'am many more. And software and hardware. हाँ, Ma'am, they also consist of consultancies and very good. They also consist of the consultancies, very good. Now, when we talk of the IT sector, information technology and the electronic industry, see, we all know that Bangalore is considered as the IT hub of the country. Yes. Yes, ma'am. yes, ma'am.
है ना। इसको बेंगलुरु को जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैम कैपिटल? स्टेट ऑफ सिलिकॉन हाँ, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। मैम has many हाँ, IT service Ma'am, because there is service providers has Melbourne. यस यस, बेंगलुरु को आईटी हब कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है आईटी यूनिट जो है ये यहीं पे एस्टैब्लिश्ड है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है, इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आईटी के सेक्टर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कह लो, चाहे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कह लो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है सिर्फ आपका बेंगलुरु में ही होता है अकेले में। ठीक है, ठीक है। As ma'am the latest news is the 5G हाँ testing is over in Bangalore only. हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री में आपका टेलीविजन आता है, ठीक है, आपका जो है टेलीफोन्स आते हैं, आपके रेडियोज आते हैं, ठीक है, radars. हाँ, And कंप्यूटर्स आते हैं, telecommunications. हाँ, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सब कुछ आता है। उसके बाद आपके रडार्स, आई थिंक रडार्स हमने बताया था क्या होते हैं, है ना, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. ये जो सेक्टर है ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि आप देखो मतलब जब से ये आपका पेंडेमिक आया है कोविड वाला, उसके बाद से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आया है। क्यों? क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च हुए, नए नए सॉफ्टवेयर बनाए गए ताकि पढ़ाई को और इजी करा जा सके। आप देखो आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ। मतलब समटाइम्स आई फील कि ये जो आने वाला टाइम होगा ना, इसमें मुझे नहीं लगता है कि स्कूल्स वगैरह में जाके बच्चे पढ़ाई करेंगे, या जो कॉलेजेस और जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा इनका रेलेवेंस रह जाएगा। आप देखो आज की डेट में इतने एप्लीकेशंस आ गए हैं, इतने सारे जो है जो टीचिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आप बायजूस और ये सब तो पहले से थे ही, इसके अलावा भी बहुत सारे आ गए हैं, इतने सारे आ गए हैं। कुछ तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने ही बहुत सारे जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह जो है लॉन्च करे हैं, जिसमें कि दे हैव टेकन इनिशिएटिव टू टीच, टू educate all the children those who are there. They have approached many of them. I think आप लोग को भी पता होगा उसके बारे में, ठीक है। तो अगर आप ये देखो, इस पेंडेमिक ने इस सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट और बूम दिलाया है, ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम Yes, ma'am. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 46 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 46 हैं, और हमारे कंट्री का जो 30% ऑफ द वर्कफोर्स है वो विमेन है, और जो कि इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, राइट क्लास, Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और सबसे ज्यादा ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. ये फॉरेन एक्सचेंज आई थिंक आपको पता है क्या होती है, Yes. पता है ना। फिर आपका जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कीज हैं, ये जो भी हैं, ये आईटी सेक्टर की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। दूसरा, अगर हम इनके सेंटर्स की बात करते हैं तो मुंबई कह लो, आपका दिल्ली कह लो, चेन्नई कह लो, ठीक है, फिर आपका पुणे, हैदराबाद, फिर आपका कोलकाता, लखनऊ, ठीक है, एंड कोयम्बतूर। ये जो प्लेसेस हैं
ठीक है बेटा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बतूर, ये जो है हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पे कि आईटी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी गई हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let us read now. बुक हम शेयर कर लेते हैं. चलिए, कैन वी हैव Anya reading? Anya, are you there? Anya, are you there? Anya, are you there? Is Anya there in the meeting? No, ma'am. Left just now. No, ma'am. Nikhil Nehra, Yes, ma'am. बेटा पढ़ो. Ma'am, can May I? ये okay. अग्रिम ma'am, I पढ़ो. am not ready for class. अच्छा, चलो अक्षरा इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा. अग्रिम रीड बेटा. Yes, ma'am. Ma'am, from Information and Technology. Yes, beginning. Okay, ma'am. Information Technology and Electronics Industry. The electronics industry covers a wide range of Products products, from transistor sets to television, telephones, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers, and many other equipments required by the telecommunication industry. Bengaluru has emerged as the electronic capital of India. Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. Beta, if The you have major the industry- books, beta, wait. If you have the books with you, kindly underline these places which just now he read about. Underline. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Continue, Agran. A major impact of this industry has been an employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. नहीं, कहाँ से पढ़ रहे हो Ma'am, आप? please follow. ठीक है. रुको एक मिनट बेटा. Ma'am, from where is he reading? I don't know. A major impact of this industry has been पढ़ लिया है आपने ये अग्रिम? Yes, ma'am. Okay, the continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT sector in India. ठीक है, this was all about the IT sector, IT industry. Now coming to the industrial pollution and the environmental degradation. बेटा हम ये इस बात जानते हैं, जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी ज्यादा व्हीकल्स होंगी, उतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल भी हाई होगा. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नो, अगर हम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Yes, हम ma'am. industrial- हाँ, Yes, ma'am. अगर हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात करते हैं और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करते हैं, तो आपका ये 4 तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है. एयर पोल्यूशन, ठीक है, फिर आपका वाटर पोल्यूशन, देन आपका एयर वाटर, देन नॉइज पोल्यूशन, और फिर आपका थर्मल पोल्यूशन. ठीक है, ठीक है. अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, जो भी जितने भी मतलब जो भी स्मोक रिलीज होता है बाय द व्हीकल्स, बाय द इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सब से जो है एयर पोल्यूशन कॉज होता है, ये हमें पता है ना. जैसे टॉक्सिक गैस जो लीक करती हैं, उनका किस तरीके से लॉन्ग रन में जो इम्पैक्ट है ऑन द लाइव्स एंड ऑन द इन्वायरमेंट, कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है. तो वी नीड टू चेक
ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट इज रिलीज्ड, that is done by various industries which are there, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, नॉइज हो, थर्मल हो, इन सब को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें कुछ साइडवेज कुछ मेजर्स को, कुछ ऐसे मेजर्स जो है सोचने पड़ेंगे जिनसे कि इनके जो पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, उसको हम एटलीस्ट अगर खत्म नहीं कर सकते तो उसको हम इतना मिनिमाइज कर दें कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना रहे। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, तो हमें पता है कि एयर पोल्यूशन जितने जो भी स्मोक रिलीज होता है या जो भी गैस या फ्यूम्स जो है वो रिलीज होती है इन द एयर, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे जो आसपास की जो एयर है उसको कितना ज्यादा पोल्यूट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होते जा रहा है डे बाय डे। मोर ओवर, क्योंकि हमारे पास नेचुरल वेज नहीं है ऑक्सीजन को। यस अग्रिम, यू वांट टू से समथिंग? Sorry to disturb you, ma'am. Ma'am, what does thermal pollution refers to? I am coming to that. Wait. I am coming to that. Okay. एयर वाटर नॉइज तो हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो शोर होता है वो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। जो व्हीकल्स की जो हॉकिंग एंड जो होती है, या जो आवाजें जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो मशीन्स मूव करती हैं, जो लाउड नॉइज प्रोड्यूस करती हैं, उससे नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। वाटर पोल्यूशन, जो एफिलेंट जो है आपके जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जो पानी में फेंक दिया जाता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन, द स्मोक दैट इज रिलीज। पर ये जो थर्मल पोल्यूशन होता है ना बेटा, ये जो आपके ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और जो थर्मल पावर प्लांट्स है, यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज होता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी बेटा, हीट के बारे में बात कर रहा है ये। ठीक है, जो गर्म पानी जो हम ड्रेन करते हैं, फिर चाहे वो आपका कोल बड़ी गर्म वो ऐश जो होती है जिसको कि हम पानी में डाल देते हैं, उसकी वजह से जो है जो आपका एक्वेटिक लाइफ है वो कितना ज्यादा पोल्यूट होती है। एक्वेटिक लाइफ जो है टोटली खत्म हो जा रही है। और जो हमारे पानी को जो प्यूरिफाई करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, वो जो है नहीं बच रहे हैं। तो उसकी वजह से जो आपका वाटर पोल्यूशन जो है वो उसका परसेंटेज और लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे आपका जो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे कोल बर्न करके जो है एनर्जी को रिलीज किया जाता है बेटा, इन जगहों पे ये जो ऐश होती है ना, गरम ऐश को ये लोग बाहर ओपन में ऐसे फेंक देते हैं। और कई बार ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी में इसको डाल देते हैं। हाँ, तो इससे बहुत नुकसान होता है। ये जो है इसकी वजह से जो है हमारा एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिग्रेड हो रहा है। चाहे वो फिर हम अपने लैंड डिग्रेडेशन की बात अगर करते हैं, लैंड भी खराब हो रहा है, लैंड की क्वालिटी भी खराब हो रही है, प्लस हमारा जो पानी में जो पोल्यूशन जो है होता है वो भी इससे हो रहा है। एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा ये जो आपका है क्या बोलते हैं, ये जो है वो टर्म याद नहीं आ रही बेटा, भूल गया उस टर्म का नाम मेरे को। चलिए कोई नहीं, याद आएगा तो दोबारा मैं बता दूंगी। ये थर्मल क्लियर हुआ बेटा आपको अग्रिम? Yes, ma'am. इसमें जितने भी आपके जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस है, ये जो थर्मल पावर स्टेशंस है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल वगैरह को बर्न किया जाता है, और उस बर्निंग कोल की जो ऐश होती है, वो ऐश आपने देखा है ना, जब आग खत्म होती है, जब आग ठंडी हो जाती है, तो राख जो होती है उसकी जो ऐश होती है वो बहुत गरम होती है। ये लोग क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो गरम वाली ऐश होती है इसको लाके सीधा ये लोग डायरेक्टली या तो पानी में डाल देते हैं या इसको सीधे ओपन में डाल देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले इसको वहीं पे ठंडा होने देना चाहिए। उसके बाद ठंडा होने के बाद इस ऐश को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोयले की जो राख होती है वो अपने आप में फायदेमंद तो होती है कि नहीं होती है? आपने सुना होगा गांव देहात के लोग जो होते हैं वो लोग जो है जो चूल्हे की जो राख होती है उसको अपने जो भी वो छोटी मोटी जो खेती करते हैं उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं, उसका रीजन क्या है, वो क्यों डालते हैं? क्योंकि वो जो राख होती है वो बहुत ऑर्गेनिक होती है, उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है केमिकल फ्री होता है वो, तो वो हमारे जो भी चीज हमने फसल लगाई होती है उसमें एक तो कीड़ा लगने नहीं देता है। ठीक है, और कीड़े से एक तो उसको सुरक्षित रखता है, उसको साफ रखता है, क्लीन रखता है, और दूसरा वो अपने आप में ऑर्गेनिक है तो उसके अंदर कोई गलत चीज अलग ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि
हमारी फसल को खराब करे, हमें बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाने को मिलता है। ठीक है, तो देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो। उसके लिए भी अब आप आज की डेट में अगर आप देखो, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितनी भी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, उनमें गवर्नमेंट ने प्रोविजन देके रखा है कि जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी उनमें पहले फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। उन फिल्ट्रेशन प्लांट्स में पहले सारे के सारे जितने भी आपके जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको जो है वो करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बाद ही उसको जो है पानी या कहीं पे छोड़ा जाएगा। जितना भी जो भी केमिकल वेस्ट होता है जो कि पानी को पोल्यूट करता है या पानी की क्वालिटी को खराब कर सकता है, उस वेस्ट को जो है वहां से उधर ट्रीट किया जाता है, उसमें से सेग्रीगेशन करे जाते हैं, और उसके बाद जो है उसको जो वेस्ट को जो है पानी में फेंका जाता है। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ओके देन मेरे ख्याल से नॉइस पोल्यूशन समझाने की जरूरत, वाटर पोल्यूशन समझाने की जरूरत है हमको, No, ma'am. है ना? क्लियर है ना? No, ma'am. No, क्लियर ma'am. टू एवरीवन? नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलिए, आप जानते हैं बेटा, ये जो थर्मल पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से कैंसर बहुत कॉमन हो गया है अमंग द पीपल। इसकी वजह से Yes, ma'am. बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं ये बहुत कॉमन हो गए हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so let us read now. Right? I need to share the book. चलिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अक्षदा, Yes. Contribute significantly to India's economic growth and development. The increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land, noise. The polluting industries also include thermal power plants. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon. Particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist, and smoke. Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns. Yes, ma'am. Refineries and smelting plants and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy? Air pollution adversely affects human health, animals, plants, buildings, and the atmosphere as a whole. Okay, Water pollution. wait. See, when we talk about the air pollution, आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब्स फेंके गए थे, Yes, nuclear ma'am. bombs, उसकी Now वजह also, से ma'am. हाँ, कल उसकी एनिवर्सरी थी, I'm now also. कल उसकी एनिवर्सरी थी 6th और 8th को फेंका गया था ना। 6th August and 9 Some August. diseases are in people now also, ma'am. हाँ, it is exactly. Ma'am, from generations to generation. Yes, see, when we talk of the toxic gas leaks that are there, इनका Yes. इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। आज की डेट में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग अफेक्टेड थे, आज भी उस एरिया में चीजों में, लोगों में डिफेक्ट्स हैं। मतलब किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है, किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है। देयर आर सेवरल हेल्थ एलिमेंट्स दैट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम। तो आप देखो, हम एज अ लाइक अगर हम डेली लाइफ को देखें तो हम बहुत ज्यादा जो है इन चीजों को वो करते हैं, ओवरलुक करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें ये इंश्योर करना चाहिए। सी, वी ऑल हैव टू Yes, ma'am. वी ऑल हैव टू हैव आवर शेयर्स। अगर हम ये कहें कि भाई लोग रिस्पॉन्सिबल हैं चीजों के लिए, तो वी कैन नॉट से दैट। हम भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। इफ वी आर नॉट स्टॉपिंग पीपल इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सेम, है ना? तो हमें अपने एफर्ट्स पूरे रखने चाहिए, अपनी तरफ से जो भी हम कोशिश कर सकते हैं उनको हमें करना चाहिए, जिससे कि इस चीज को
अगर हम खत्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैक्सिमाइज ना होने देने के बजाय हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश हमें करनी चाहिए एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. चलिए। एनीथिंग इन दिस एयर पोल्यूशन दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू पीपल? बेटा ब्रिक क्लिन्स No, जानते ma'am. हैं? ओके, ब्रिक क्लिन्स क्या होती है जानते हैं? क्लास अग्रिम, No, ma'am. ए सीरियसली? Ma'am, what? ब्रिक क्लिन्स क्या Ma'am, होती do है? you tell the spelling? BRICKKINS। बेटा जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ईंटों के भट्टे जो होते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, आपने स्कूल पे, अभी तो खैर वहां पे सड़क बन गई है अंडर द BDA स्कीम, पर पहले अगर आपको ध्यान हो, अगर जब हम स्कूल की तरफ जाते थे और टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एक बहुत पतली सी, एक बहुत नैरो सी एक वो बनी हुई थी, जिसमें से हमेशा आप दोपहर के समय देखते होगे धुआं निकला करता था। तो और वहां पे खूब सारी मट्टी के वो रखे हुए थे, ईंटें वहां पे बनाई जाती थी। तो ब्रिक लिंक्स जो होती है वहां पे ब्रिक्स बनाई Yes, जाती ma'am. है। हाँ, ये जो Yes, ब्रिक ma'am. लिंक्स होती हैं, ये भी जो है, इससे भी जो स्मोक रिलीज होता है, ये भी जो है एयर पोल्यूशन को क्रिएट करती है। रिफाइनरीज भी पता है आपको क्या होती हैं? Refineries, do you know what are refineries? Yes, Kolu. ठीक है, हाँ। तो इन जगहों पे जो है क्या करा जाता है, रिफाइनरीज जो होती हैं ये भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। चलिए, कमिंग टू दी वाटर पोल्यूशन, कैन वी हैव मलय रीडिंग? yes. हाँ, Water pollution. It is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers. The main culprits in this regard are paper, pulp, petroleum refineries, tanneries, and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber, etc. into the waste bodies. water Fly ash, phosphogypsum, phosphor, gypsum, and iron steel stakes are the major solid waste in pollution. Of waste occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and wait, ponds agree, before. Malay, wait, What would be the effect on aquatic? Malay, wait. Beta, water pollution is clear and understood? Yes, ma'am. Anything that is not clear or understood in this part, water pollution part? No, ma'am. All clear? Yes, ma'am, ma'am. excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, what is phosphogypsum? बेटा फॉस्फोट और जिप्सम के जो वेस्ट होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। आयरन और स्टील स्लैग्स जो होते हैं, इनसे जो वेस्ट निकलता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, चलो कैरी ऑन। Waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects, and miscarriages. Soil and water pollution are closely related. The dumping of harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and groundwater also gets contaminated. Noise pollution not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment, Impairment, increased heart rate impairment, हाँ, increased